the dais, the director of our academy, Mr. Tejas Patil sir, and all the students present over here. I, Parish Bhade, welcomes you all to this grand session. We have amongst us Cadet Abhijit Kadam sir, our honorable chief guest. Next few hours, we are going to be very enthusiastic because it will be an interesting interactive session with sir. Sir's story is very inspiring and motivating. So we are very eager to know about you, sir, and your story in YTA. वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं. So we are very glad to hear Abhijit sir's story from his mentor Tejas Patil sir. So I request you, sir, to please start this session. All right. It's been a long wait, Abhijit. When did you get recommended? Recommended on 12th of February 2021. Right. To FSP Mysore. Yes. So सबसे पहले तो डेकोरेशन बहुत सही किया है. ट्राई कलर लुक्स ब्यूटीफुल. किसने किया? कितने लोगों ने किया? वंडरफुल. कितना टाइम लगा? Half an hour. Right. So as you all know, SPI boys, you guys are new here. यहाँ के speeches कभी boring नहीं होते. We are going to enjoy the session. Yeah. जितना भी I won't take much of the time because I know you are eager to hear from Abhijit Kadam. क्योंकि आज मैंने इंटरव्यू लिया काफी लोगों के. It was really wonderful. काफी extend हुए, but let it be. ठीक है? Because our priority is to keep on developing. That has to be the priority. और तब मुझे realize हुआ आप में से काफी लोगों को Indian Air Force join करना है. That too flying plan. ठीक है? We have in front of us who will be flying soon. अब क्या fly करना है? पता चलेगा कुछ ही सालों में. ठीक है? But जो आप लोगों का सपना है, आप लोगों का जो फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है, that guy is in front of you. ठीक है? So I won't take much of the time because even I am eager to hear so many stories from him. कोविड की वजह से हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला स्पेंड करने के लिए. Even I don't know much of the stories. So without wasting any further time, I request Abhijit to come on stage and you can continue with your speech. Yes, please. Thank you, sir. Firstly, good afternoon, everyone. Am I audible to the last? Yes, sir. Guys at the last row, raise their right hand. Last row. Raise your hand. Okay. I'm audible. Keep it up. भाई कैमरा भाई पे एडजस्ट करना है ना क्योंकि एक ही स्टड है इधर. यार तेजस तो हमेशा होने ही वाले उधर ही एडजस्ट करना उसको. So, good afternoon, everyone. Today, I am here to share my experiences to you with YTA and as well as with SSB as well. So, firstly, मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड देता हूँ ताकि तुमको पता चलेगा हम किस केयर की मूली है. My name is Cadet Abhijit Shashikant Kadam and I am in class 12. Currently, I am studying in Sainik School Satara and I am recommended for NDA 146 from 2FSB Mysore. I have cleared my CPSS as well and I have completed my medicals. So now let us start. So firstly I would tell about why did I think of joining the defense forces. You can go in Marathi as well. हां काय झालं तर पहिल्यांदा बघितलं ताई डॉक्टर ताई मला मोठी बहीण आहे. मग तिला बघितलं तिने MBBS वगैरे तिने सुरू केलं. तिचे बुक्स एवढे सगळे होते माझं कपाट तिच्या बुक्सनी भरलेलं असायचं. मी कधी कपाट खोललं मला भीती वाटायची अरे बाप रे एवढा सगळा अभ्यास करावा लागेल. मग म्हटलं तेव्हा कळालं डॉक्टरी तर कॅन्सर आपण नाही करणार. मग आता माझं घर NDA जवळ कसे होतं. मग NDA मध्ये एव्हरीडे दे यूज्ड टू सॉर्टीज यूज्ड टू बी देयर. त्यामुळं एअरक्राफ्ट वगैरे बघत त्यांचं जे माझं जेवण वगैरे तिकडे जायचं. एनीवन नोज NDA मध्ये कुठला एअरक्राफ्ट फ्लाय करतात? एनीवन? Jaguar. नाही. Diamond Hawk. क्लोज टू इट. ओके इंडिया मध्ये ट्रेनर एअरक्राफ्ट असतं सुपर टिमोना. दॅट इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन. पण मग ते सगळं बघून मग जेवण वगैरे करायचं. मग तेव्हापासून मग कळालं यार डिफेन्सला जायचंय. मग सैनिक स्कूलसाठी ट्राय केलं. 8वी पर्यंत तर मग असंच होतं जसे बाकीचे सगळे सिव्हिल लाईफ मधले पोरं असतात. थोडंफार सगळ्या स्पोर्ट्स मध्ये मागे अभ्यासात थोडंफार ठीकठाक होतो. देन आय स्टार्टेड प्रिपेअरिंग इन क्लास 8. देन आय गेव द एक्झामिनेशन इन क्लास 8 इन डिसेंबर. आणि मग रिटर्न एक्झाम क्लिअर झालं फायनली. मग होतं इंटरव्ह्यू वगैरे सगळं क्लिअर केलं. मग फायनली सैनिक स्कूलला जॉईन झालं.
मग तिथं कळालं अरे यार लाईफ में तो बडा मोड आ गया. मग म्हटलं चला अब कुछ तो करना पडेगा. मग नाईन्थचं तर फर्स्ट इयर जे होतं तो माझं सगळं पनिशमेंट, झोपा काढण्यामध्ये, टाइमपास करण्यामध्ये, तिकडचे रूल शिकण्यामध्ये हेच सगळं गेलं. त्यामुळं मग नाईन्थमध्ये तर एवढं काही नाही. पण हां, नाईन्थमध्ये एक काम केलं, फिजिकवर माझ्या खूप इम्प्रूव्ह केलं मी. कारण तिथे जे होतं जी पोरं 6 पासून आहेत तिथे, मी 9thमध्ये आलेलो मध्ये, त्यामुळं मग फिजिकवर वर्क करणं खूप महत्त्वाचं होतं. 9thमध्ये जेवढं जमेल तेवढे जास्त स्पोर्ट्स खेळले, फिजिक माझं तेवढं इम्प्रूव्ह केलं, सो दॅट मी त्यांच्या लेवलपर्यंत ट्राय करायला पोहोचायचं. स्टील आय अग्री दॅट जे 6वी पासून आहेत ते माझ्यापेक्षा पुढेच आहेत. त्यानंतर मग 10thमध्ये चेंज येतो. आपण 9th पर्यंत तुम्ही जे काय स्पोर्ट्स वगैरे खेळत असाल, मी पण सांगतो 9th पर्यंत अभ्यास करायची एवढी गरज नसते. 9th पर्यंत जास्तीत जास्त स्पोर्ट्स वगैरे खेळले पाहिजे. आणि मग नंतर 10thमध्ये मेन अभ्यास करणं सुरू होतं. कारण आणि 10th नंतर जे आहे अभ्यास तो इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज टिल 10th वी आर लर्निंग अंडर दी RTE, दॅट इज राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट. सो इट इज मॅन्डेटरी टू लर्न टिल क्लास 10. पण त्यानंतर आपला खरा अभ्यास सुरू होतो, तो आहे क्लास 11th आणि क्लास 12th, and that is very important. So starting with how I started, class 10th मध्ये मग स्कूलमध्येच अभ्यास करायचो. पण मग ॲज युजल पॅरेंट्स आपल्याबद्दल खूपच केअर करतात दरवेळेस. मग माझ्या पेरेंट्सनी सुरू केलं पुण्यामध्ये त्यांचं हट सुरू केला, चांगली अकॅडमी कुठली NDAच्या एक्झामसाठी, चांगली अकॅडमी कुठली NDAच्या एक्झामसाठी. मग त्यांना सापडले तेजस सर. माझे कोल्हापूरमध्ये एक रिलेटिव्ह होते, त्यांनी मग सजेस्ट केलं की असे तेजस सर आहेत, ही विल टेक गुड NDA क्लासेस, तो गाईड करेल चांगलं. तेव्हा यू वुड नॉट इमॅजिन, तेव्हा त्या साईडला केदारच्या अपोजिट त्यांची आतमध्ये बिल्डिंग होती, तिथे मध्ये जस्ट एक फ्लॅट होता सरांचा, त्याच्यामध्ये होते. सरांनी रेंटवर घेतला. राईट. सरांचा रेंटवरचा एक फ्लॅट होता, सर त्याच्यामध्ये शिकवायचे. मम्मी पप्पाने पण ते बघितलं. पण सरांचं डेडिकेशन आणि मोटिवेशन बघून सर मला सॅटर्डेला फोन मिळायचा, सॅटर्डे संडेला मला फोन करून पॅरेंटने सांगितलं अकॅडमी मोठी नाहीये पण सर एवढे मोठे आहेत ना, नक्की तुला पास करू दे. ते म्हटले एकदा तरी भेट सरांना, तुझ्यामध्ये एवढी एनर्जी टाकतील ते, तू वेड्यासारखा अभ्यास करायला लागशील, खूप मजा करशील इकडे. पण मग 10वी काढली तशीच. म्हटलं ठीक आहे, 10वीत तर आता कोण अभ्यास करणार होतं, फक्त 10वी बोर्डचं बघितलं. देन इट केम टू क्लास 11th. मग मी कॉम्प्युटर सायन्स घेतलं, कारण बायोलॉजी करायचं नव्हतं, आधीच सांगितलं तुम्हाला. त्यानंतर कॉम्प्युटर सायन्स घेतलं आणि मग आता NDAची प्रिपरेशन सुरू करावी लागली. मग त्याच्यामध्ये 11thमध्ये आमच्या स्कूलमध्ये थोडंफार जे गायडन्स व्हायचं ते व्हायचं. पण मग जसं संपत आलं तसं मग त्याच्या सरांशी माझ्या पेरेंट्सचा कॉन्टॅक्ट वाढायला लागला. हळूहळू मग त्यांच्याशी जास्त बोलणं. मग तोपर्यंत त्यांनी तिथे अजून बाजूची पण एक रूम घेतली, ती पण रेंटवर. त्यानंतर मग तिथे मग ते थोडं एक्सपांड झालं. मग पेरेंट्सचं झालं की नाही आता भेटायचं त्याच्या सरांना भेटायचंच आहे. आणि मग 11वी पर्यंत पण आमचं जस्ट फोन कॉलवर बोलणं व्हायचं. ते पण माझं आणि पेरेंट्सचं की तेजस सर कसे आहेत, माझं तेजस सरांचं कधीच बोलणं नाही. त्यानंतर मग पहिल्यांदा सुरुवात झाली. मग 11वी तर संपली तशीच. थोडाफार अभ्यास केला मॅथ्सचा, GATचा, जेवढं जमेल तेवढं शाळेत खेळत टाइमपास करत, शाळेमध्ये पार्टी करत, बटर चिकन आलं. पण मग नंतर 11th संपत आलं तसं लॉकडाऊन सुरू झाला. आमच्या शाळेचे जवळपास 15-20 पोरं होते जे सरांकडे लावणार होते ऑफलाईनला. पण मग ते काय जमलं नाही. मग लॉकडाऊन सुरू झाल्यामुळे मी पुण्यातच होतो, इथे आलो. देन स्टार्टेड द रिअल जर्नी ऑर द वॉक. कारण मग फर्स्ट 2-3 months आम्ही ट्राय केलं. सरांना आम्ही सांगतो सर ऑनलाईन क्लास घ्या. सरांचं होतं की ॲपच डेव्हलप करायचं डायरेक्टली, झूम वगैरेवरनं त्यांचं घ्यायचं तयारी नव्हती. मग सरांनी त्यांचं ॲप ते लॉकडाऊनमध्ये ते बिलकुल गप्प नाही बसले. सर हॅज ऑलवेज बीन मोटिवेटेड टू मला परत सुरू करायचं आहे, कशा प्रकारे व्हिडिओ स्टुडंट्सला शिकवायचं. ते सरांचं खूप मोठं क्रेडिट आहे. ते कधीच शांत नाही बसले लॉकडाऊनमध्ये. त्यांनी फुल वर्क केलं आणि ते केम अप विथ देअर ॲप्लिकेशन YTचं जे ऑनलाईन ॲप्लिकेशन होतं. तिकडनं जी आहे ती मेन तयारी सुरुवात झाली. मग सर आणि मी 1-2 ऑनलाईन लेक्चर्स आधी केलेले थोडेफार. म्हटलं ठीक आहे आता बघू, थोडं आपण जॉईन करतो. पण मग तोपर्यंत माझं सरांचं चांगलं बोलणं व्हायचं 11वीमध्ये. त्यांच्या मग मार्च-एप्रिलमध्ये आम्ही चांगलं बोलायचो. थोडेफार व्हॉट्सअप व्हिडिओ कॉलवरती मला शिकवायचे एखादं टॉपिक्स. मग रात्री आम्ही PUBG खेळायचो. दोघं पण रिकामे होतो कारण की लॉकडाऊनमध्ये.
आणि तेव्हा एग्जामचा सिरियसनेस पण नव्हता. UPSC वॉज लाईक सप्टेंबर में होगा तो होगा, कोरोना की वजह से तब भी पता नहीं था. मग आम्ही दोघं PUBG खेळायचो. तेव्हा लिविक मॅप आलेला नवीन, लिविक खेळायचो. मग हळूहळू PUBG खेळायचो दररोज. इंस्टाग्रामवर मीम वगैरे शेअर करायचो. आमचं DM त्यानेच भरलंय, सर PUBG खेळायला येता का झालं तेवढं, आणि स्क्रीनशॉट्स. मग जसं जसं ते खेळायला लागलो मग पटपट दिवस जायला लागले. आणि मग त्यानंतर ना 1-2 महिन्याआधी किंवा 3 महिन्याआधी सरांचं झालं की असं आहे, आता ऑनलाईन सुरू आहे, तू कमीत कमी क्रॅश कोर्स तरी लावा माझ्याकडे. PUBG खेळताना रात्री सर मला 12:30-1:30ला सांगतात की बाबा लावतो असं क्रॅश कोर्स, आता अभ्यास करेन घ्यायचा. मग 1-3 महिन्याआधी मग घेतलं सरांकडे ऑनलाईनला ॲडमिशन. आणि मग नंतर ना तिकडनं जर्नी सुरू झाली. मग अभ्यास करायला सिन्सिअरली सुरू केला. मग त्यासोबत विकास सर पण होते. त्यांनी तर म्हणजे त्यांना मी फर्स्ट टाइम त्याच्या सरांनी मला सांगितलं की आमच्याकडे खूप एक्सपिरियन्स सर आहेत, त्यांचं प्रेडिक्शन वगैरे खूप चांगलं आहे GATचं, ही विल हेल्प यू लॉट, त्यांचा नंबर देतो तुम्हाला, ही इज व्हेरी ग्रेट. त्यांनी खूप ट्राय केलं एक्झाम IAS वगैरे. मला वाटलं अरे बापरे, त्याच्या सरांपेक्षा पण मोठे असतील आणि एकदम असे जरा ओल्ड असतील. मग त्यांच्याशी फर्स्ट टाइम बोललं तर मग एकदम यंग होते, सेम त्याच्या सरांसारखे होते विकास सर. व्हेरी फ्रेंडली आणि गायडन्सला एकदम भरपूर. त्यांनी पण मला गाईड केलं हाऊ टू गो थ्रू गॅट. मग त्यानंतर ना मग सुरू झालं. मग फर्स्ट जो होता YTM, मग ऑनलाईन लेक्चर्स आमचे सुरू झाले. मग तर सरांचा कोणी हात धरलाच नाही. सकाळी 9 पासून सुरू व्हायचे ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत कंटिन्यूस जायचे लेक्चर. ते मग खरंच अमेझिंग होतं. आणि कंटिन्युअस घ्यायचे सर, तरी पण ते कधी मोनोटोनस नाही व्हायचं. इतकं मस्त वाटायचं सरांच्या लेक्चर्सला. मी हसायचो वगैरे. आई येऊन बघायची, अरे हा इंस्टाग्राम तर नाही चालवते किंवा फेसबुक तर नाही चालवते, पण ऍक्च्युअली क्लासमध्येच आमचे जोक्स व्हायचे किंवा सर कोणाची तरी उडवायचे. त्यामुळं एक अमेझिंग एक्सपिरियन्स झाला क्लासमध्ये. तर हळूहळू जसं मॅथ्स शिकायला लागलो, मग सेम विथ GAT सरांनी पण खूप नॉलेज वाटलं. त्यानंतर नाजे सर होते केमिस्ट्री वगैरे शिकवायला. ऑल ओव्हर इतकी मजा आली त्याच्यामध्ये. मग फायनली जे आहे ना ते तेजस सरांचं ऐकायचं असं माझं तर मत आहे. कारण आम्ही दररोज PUBG खेळायचो, पण 2 महिन्यात तेजस सरांनी सांगितलं आता बास झालं, आता तुझा पण लोड वाढलाय, माझा पण लोड वाढलाय, 2 महिन्यापूर्वी थांबू आपण PUBG खेळायचं. सिन्सिअरली ते मी ऐकलं आणि त्याचा मला फायदाही झाला. मग 2 महिन्याने ते थांबवलं. आणि मग ह्याच्यामध्ये जुलैमध्ये सरांनी सांगितलं की जुलै एंडच्या आसपास सांगितलं, म्हणजे ऑगस्ट सुरू होणार होता की आम्ही आता बास, इंस्टाग्राम पण थांबवू आपण, खूप हे केलं. बस 2 महिन्याने PUBG, 1 महिन्याने इंस्टाग्राम थांबवलं. सिन्सिअरली अभ्यास करायला सुरू केला. मग सप्टेंबरमध्ये एक्झाम होती, 6 सप्टेंबरला एक्झाम होती आमची इंडियाची. मग ती देऊन आलो रिटर्न. जसं सर म्हटलेले तुम मेरा अच्छे से प्रिपेयर करो, पेपर देखते मेरे को पप्पी याद होगे, तसंच झालं. सरांचं एकदम शिकवलेलं सगळं कामाला आलं. रिटर्नचे पेपर, आय वॉज व्हेरी हॅपी विथ माय पेपर्स. GATचा पण चांगला गेलेला, मॅथ्सचा पण चांगला गेलेला. आणि मग त्यानंतर ना मग सुरू झालं, मग लॉकडाऊनमुळे वगैरे मग हे सगळं झालं. आणि मग आम्ही एक्झाम क्लिअर झाली सप्टेंबरमध्ये, रिझल्ट आला ऑक्टोबरमध्ये. आणि मग नंतर ना ऑक्टोबरच्या एंडिंगला फर्स्ट टाइम मी आणि तेजस सर फिजिकली भेटलो. तोपर्यंत आम्ही नुसतं फोन कॉल आणि व्हिडिओ कॉलवर बोलायचो. पण हे बाकीच्या ज्या सगळ्या गोष्टी होत्या ना, सरांचं जे बोलणं होतं ते मला पर्सनली कधी कॉल करायचे, प्रत्येकाला आमच्या बॅचमधल्याला त्यांच्याशी बोलायचे. त्यामुळं असं कधी वाटलं नाही की त्यांना फिजिकली भेटलो नाही, असं कधी वाटलं नाही. आम्ही दररोज PUBG खेळायचो. अजून पण सरांनी मला 1v1 मध्ये हरवलं नाही आहे TDM मध्ये. त्यामुळं आहे आता हे सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळं जी बॉन्डिंग म्हणते ना ती खूप चांगली आहे. आणि ते पण एकदम एन्थुसियास्टिक आहेत शिकवण्याबद्दल. त्यामुळे ते कधीच मागे थांबत नाही. आणि मग नंतर ना आता हे सगळं झाल्यावर मग आता फिजिकलसाठी लॉकडाऊनमुळे वजन खूप वाढलेलं माझं. दॅट टाइम आय वॉज 92 kg. मग आम्ही ट्रेक वगैरेला जायचो. आम्ही नाही ते 7-8 जण होतो, सिनियर्स तुमचे 7-8 जण होते. आणि तेजस सर, सोमिंग सर, विकास सर, आम्ही 10-12 जण मिळून जायचो ट्रेकला. तर मग तेव्हा सर मला दरवेळेस म्हणायचे जाड्या म्हणून, इकडे तिकडे घसरायचो, पडायचो. मी सरांना नेहमी म्हणायचो, सर 2 महिने थांबा, तुम्हाला चान्स नाही मिळणार परत चिडवायचा. मग तसं मग कळालेलं की रिटर्न एक्झाम क्लिअर झाले. मग मी हे पण करायला सुरू केलं, वर्कआउट वगैरे. त्यानंतर ना 92 होतो मी. SSBला जायच्या आधी आय वॉज 80 किलो. मी 12 किलो कमी केलं, 12-13 किलो कमी केलेलं मी अप्रॉक्सिमेटली SSBला जायच्या आधी. मग सरांना भेटलो आणि तेव्हा सरांचं तोंड बघण्यासारखं होतं. ते होते की अरे यार आता ह्याला काय म्हणायचं. पण मग इट इज ऑल मेमरीज. तुम्ही जे सगळं हे करता त्याच्यामध्ये तुमचं जे हार्डवर्क आहे ते खूप मॅटर करतं.
कारण आता सर आहेत, विकास सर आहेत, सोमनिंग सर आहेत, तेजस सर आहेत, ते सगळे तुम्हाला गाईड करतील, सांगतील. बट इट इज यू हू विल वर्क. दे कॅन ओनली टेक यू टू वॉटर बट दे कांट मेक यू ड्रिंक ॲज इट इज सेड. त्यामुळे जे आहे, यू हॅव टू वर्क बाय ऑन युअर साईड. तुम्हाला आहे जो फ्री टाइम मिळतो तुम्ही त्याला कसं युटिलाइज करता. दुपारी मोस्ट ऑफ झोपत जातात, राईट? तसं नाही केलं पाहिजे. आता नाव इट इज हाय टाइम. आता सुरू नाही केलं ना तर मग नंतर ना हे होईल. आता जे आहे तुम्ही हार्डवर्क करायला सुरू केलं पाहिजे. त्याच्यात सर ना ऑनलाईन ह्याच्यामध्ये हमेशा म्हणायचे, त्यांचं एक वाक्य असायचं की नॉलेज नेवर कम्स इन कम्फर्ट झोन. त्यामुळं तुमचा कम्फर्ट झोन एक्झिट करा. आणि तेही नसेल तुम्हाला कळत तर मग ना सरांचा अजून एक एक्झाम्पल आहे. रिटर्न एक्झाम किती जण देतात? एनिवन? NDA ची रिटर्न एक्झाम किती जण देतात? गुड. त्यातनं SSB ला किती जणांना बोलवतात? त्यातनं सिलेक्ट किती करा? तुम्हाला वाटतं का तुम्ही त्या 8 लाखामध्ये 400 टॉप 400 आहेत? कधी बनाल तुम्ही? जेव्हा तुम्ही वर्क कराल ना, असं बसून थोडी होणार. त्यामुळं ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग, तरच तुम्ही हमेशा कॉम्पिटिशनमध्ये राहाल. कारण जर तुम्ही आता टाइम वेस्ट करत असाल ना, विचार करा तुमच्यासोबतच बाकीचे जे 8 लाख मुलं आहेत ते त्यावेळेस टाइम वेस्ट नसतील करत किंवा करत असतीलही नसतीलही करत, ते जेव्हा अभ्यास करत असतील. यू डोंट नो. त्यामुळं हमेशा तुमचा जो टाइम आहे ते एकदम प्रॉपरली युटिलाइज करा आणि त्या हिशोबाने चालायचं. त्यानंतर ना पुढे SSB ला गेलो. SSB साठी पण इंटरव्ह्यू इझी होता. म्हणजे इंटरव्ह्यूला पण ते इट इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनॅलिटी. SSB ला म्हणतात इट इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनॅलिटी. त्याच्यामध्ये पण मग सर्वात आधी सुरुवात झाली त्याच्या सरांकडेच. मी एक 15-20 दिवस होतो सरांच्या अकॅडमीला SSB साठी. मग त्यांनी आम्हाला फर्स्ट डे, आमची टोटल 11 जण होते, आम्ही त्या बिल्डिंगला राहायचो. मग तिकडे त्यांनी आम्हाला फर्स्टली प्रोसिजरबद्दल जरा फॅमिलियर केलं. आणि हे सगळं लॉकडाऊनमध्ये चालू होतं त्यामुळं स्कूलकडनं एवढा आम्हाला गायडन्स नव्हता स्कूलकडनं. सो व्हॉट एव्हर इट वॉज, तेजस सर होते आणि आम्ही होतो. मग आमचं चालायचं त्या अकॅडमीला. मग त्या बिल्डिंगला होतो आम्ही. तेजस सर आम्हाला फर्स्टली त्यांनी सांगितलं प्रोसिजर वगैरे कशी असते, काय काय केलं पाहिजे. मग त्या दिशेने आम्ही मग वर्क करायला सुरू केलं. आमच्यासोबत अजून काय आमचे सिनियर होते, पृथ्वी सर होते, अक्षय सर होते, ऋषिकेश सर होते त्यांच्यासोबत, आणि माझा फ्रेंड पण होता आर्यनमध्ये. आम्ही सगळे दररोज वर्क करायचो त्याच्यावर. SSBचे जे काय एक्सरसाइज असायच्या, ग्रुप डिस्कशन म्हणा, PPTT म्हणा, ग्रुप प्लॅनिंग म्हणा, हे सगळे आम्ही स्वतःहून वर्क करायचो. कारण हे आता त्यांचं पण दुसरे कामं चालू असायची, त्यामुळं असं नाही होणार की ते दरवेळी आमच्यावर लक्ष ठेवायला असायचे. पण स्वतःहून जे काम करणार तोच पुढे जाणार आणि आम्ही तसंच करायचो. आम्ही स्वतःहून जास्त हे करायचो. स्वतःहून सकाळी उठायचो, डिस्कस करायचो, काही वर्ड्स वगैरे बघायचो. त्याने आम्हालाच हेल्प व्हायची आणि ते फायदेशीर पण ठरलं आता. त्यानंतर सेम इंटरव्ह्यूला ते जस्ट चेक आवर कॉन्फिडन्स. आणि कॉन्फिडन्स आपल्याला कुठल्या गोष्टींमधून मिळतो सांगू शकता का? कॉन्फिडन्स तुम्हाला कशाने मिळतो? By taking initiative. गुड. This we are confident, like if we know anything properly, then we are confident about Knowledge, it. right? Yes, Knowledge will give you confidence. Stage daring. Stage daring will give you confidence. अजून काय? Clarity in ideas. बरोबर. स्पोर्ट्स हा एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज जर तुम्ही केलं असेल. बरोबर. अजून एक काय यार, घरी आशीर्वाद घेऊन जातात त्यांच्यावर कॉन्फिडन्स येत नाही. पेरेंट्सना कॉन्फिडन्स, राईट? अजून काही? ड्रेस, आपलं युनिफॉर्म कसा आहे, दॅट विल ऑल्सो गिव्ह यू कॉन्फिडन्स यार. ह्या सगळ्या गोष्टी ना तुम्ही आत्तापासून करायला लागा. इफ यू वर्क अपॉन ऑल दिस फ्रॉम राईट ना, तर तुम्हाला हे होईल. आता जर तुम्हाला नॉलेज असेल तर डेफिनेटली कॉन्फिडन्स येणार. कारण की आता मी तुम्हाला जर एका टॉपिकबद्दल माहीतच नाही तर तुम्ही काय करणार? तुम्ही तुमचा कॉन्फिडन्स लूज करणार, राईट? त्यामुळं गेन ॲज मच ॲज नॉलेज पॉसिबल. त्यानंतर ना सेकंड आहे, ऑलवेज ट्राय टू वेअर प्रॉपर ड्रेस. आत्तापासूनच सवय लागली तर चांगलं आहे ना, दॅट्स बेटर. आणि तिथे गेलं ना तुम्ही, आता एस्पेशली SY तुमचा इंटरव्ह्यू असणार ना, राईट? इंटरव्ह्यू समोर गेलं ना, जोरात जाऊन असं तुम्ही गेला की कॉल यू, कमी जायचं, थांबायचं, गुड मॉर्निंग सर. त्याला असा कॉन्फिडन्स दाखवायचा की मी इथे सिलेक्ट व्हायला आलो आणि सिलेक्ट होऊनच जाणार, असं त्याच्यामुळे त्याला दाखवायचा कॉन्फिडन्स. मग तो तुमची टेस्ट करायचा. सेम वॉज द केस विथ मी. आता मी SSBच्या इंटरव्ह्यूला गेलेलो. सेम आत गेलो, आमच्या सैनिक स्कूलच्या स्टाईलने गुड मॉर्निंग सर विश केलं. तो पण समोरचा विंग कमांडर होता. मग त्याला कळालं यार हा आलाय, जोशमध्ये आलाय. मग ही सेड मी दॅट
यू आर ओवरवेट, आई विल नॉट टेक युअर इंटरव्यू, सैनिक स्कूल में तुमको कराते नहीं है क्या कुछ. मग मला कळालं यार, कॉन्फिडन्स ब्रेक करने के लिए ट्राय कर रहा. मी म्हटलं, मी स्माइल केलं, नो सर, आय एम नॉट ओवरवेट अँड आय एम फिट टू गिव्ह द इंटरव्यू. इन लॉकडाऊन आय हॅड इन्क्रीज माय वेट बट नाव आय हॅव डन वर्कआउट अँड नाव आय हॅव रिड्यूस माय वेट. तो म्हटला ओके सिट डाऊन. सी कॉन्फिडन्स चेक करतात ते, अजून काही नाही. इंटरव्ह्यूवर तो माझ्याकडे बघतही नव्हता, इंटरव्ह्यूवर माझा खाली बघत होता. स्टील त्यांनी सगळं नोटीस केलं माझं, स्टील त्यांनी मला पॉईंट दिले असतात, त्यासाठी रेकमेंड नाही झालं. यू हॅव टू बी स्मार्ट आणि पॅरेंट्सला हमेशा लक्षात ठेवायचं. तुम्ही बघा यार, पॅरेंट्स तुमच्यासाठी एवढं करतात माहिती आहे का, आणि तुम्ही त्यांना थोडं वाईट म्हणजे माझं मोटिव्ह काय असायचं माहिती आहे का, म्हणजे काही पण वाईट गोष्टी होते माझ्या मनात एक असायचं यार की घरी यार पेरेंट्सला सांगायचे, भले ते मार्क असो किंवा आपलं फिजिकल मधलं काही असो. त्यामुळे मी हार्डवर्क करायचं यार की पेरेंट्सचा आठवड्यातून एकदा फोन होतो, त्यांना तरी वाईट खराब मार्क सांगून, त्यांना तरी वाईट हे सांगून की यार हारलो याच्यामध्ये, की यार कमी मार्क पडले याच्यामध्ये. मला ते बिलकुल चांगलं नाही वाटायचं. मी त्यामुळे रात्री 2-2 वाजेपर्यंत अभ्यास करायचो की यार काही नाही आलं तरी ते रटायचं तरी कमीत कमी, की एक्झाममध्ये ते नीट लिहिता येईल, एक्झाममध्ये नीट करता येईल. ऑलवेज रिमेंबर यार, पेरेंट्स तुमच्या मागे खूप हे करतात अँड दे एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. भले ते दाखवणार नाहीत पण ते तुम्हाला द्यावंच लागेल त्यांना तशा टाईपचा परफॉर्मन्स. ऑलवेज रिमेंबर दॅट. तेवढं तरी लक्षात ठेवा की पॅरेंट्समुळे तरी मोटिवेटेड राहा. यू हॅव टू टेल देम. कोण लपवत तर नसेल ना पॅरेंट्सपासून त्याचे मार्क्स वगैरे, आणि लपवत असेल तर इट्स व्हेरी बॅड, यू नो, इट विल नॉट हेल्प यू एव्हर कुठल्याच बॉक्स ऑफ लाईफ. त्यामुळं जे काय सांगताय पेरेंट्सला खरं सांगावं, आणि त्यातलं त्याचं चांगलं जर तुम्हाला सांगताय ते काय वाईट आहे, आणि ते तुमच्या हातातच आहे. आता माझ्या हातामध्ये पण ऑप्शन असायचे की यार रात सकाळपासून रगडा खाल्लाय, हे पनिशमेंट खाल्ली आहे, आता झोपायचं आहे का नाही, अभ्यास करायचा आहे. ब्रेकमध्ये अर्धी मुलं झोपून जायची आणि अर्धी मुलं अभ्यास करायची. मग त्या उरलेल्याच अभ्यास करणाऱ्या अर्ध्या मुलांकडे बघायचो मी, पेरेंट्सकडे बघायचो. यार संडेला कॉल येईल, टेस्टचे मार्क पण जातील पेरेंट्सला, त्यांना कसं वाटेल. एकदा तर कॉल करतात, त्यात पण ते मार्क बद्दल त्यांना वाईट ऐकल्यावर कसं वाटेल. जस्ट ऑलवेज रिमेंबर युअर पेरेंट्स, दे डू हेल लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. त्यामुळे त्यांना कधी वाईट नका वाटू देऊ, एवढं तरी करा प्लीज, तेच महत्त्वाचं आहे. आणि बाकी तर मग काय, आता तुम्हाला गाईड करायला तर खूप चांगले चांगले आहेत, तेजस सर आहेत, विकास सर आहेत, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. फुल एन्जॉयमेंट वगैरे करते तुमच्यासोबत. ऑल फन म्हणजे वाईटी आहे ना, असं ओव्हरऑल तुम्हाला ट्रेन करेल, तुम्हाला कशामध्ये प्रॉब्लेम येणार नाही. फर्स्टली आता म्हणजे जे काय तुमचं शेड्यूल वगैरे आहे, टेक प्राईड इन डुईंग ऑल दोज थिंग्स. सकाळी लवकर उठणं म्हणा किंवा असेंब्लीमध्ये लेक्चर बोलणं म्हणा, टेक प्राईड इन ऑल दोज थिंग्स विच यू डू. तरच मग तुम्हाला तुमच्यामध्ये सिन्सिअरिटी येईल, तुमच्यामध्ये डिसिप्लिन येईल, आणि मग तुम्ही त्या 5 वर चालायला लागाल. कुठे जायच्या, इंडियाला, राईट. तसं जर तुम्ही त्या हिशोबाने वर्क केलं पाहिजे. यू हॅव टू ऑलवेज गो ऑन दॅट पाथ. कीप इन माइंड दॅट फ्रॉम नाव इट सेल्फ ईच अँड एव्हरी स्टेप यू टेक should be leading you towards NDA. तरच you would utilize your time in the right way. नाहीतर मग तो टाइम वेस्टच होईल तुमचा in any or the other way. त्यानंतर इथे आलेलो मग YTAला. त्यानंतर फायनली ऑफलाईन वगैरे सुरू झालेलं. मग त्याच्या सरांशी भेटणं झालं, बोलणं झालं त्यांच्याशी. मग जेव्हा फायनली ऑफलाईन ते लेक्चर घ्यायला लागलो, मग त्याच्यामध्ये मजा झाली. कारण ते मला पण फील झालं. मी त्याच्या सरांकडे ऑनलाईन 2 महिने फक्त केलेला कोर्स, आणि त्याच्यामध्ये जे काय मोठे मोठे चंक्स आहेत मॅथ्सचे, इंटिग्रेशन होतं, त्यानंतर सगळं कॅल्क्युलस पार्ट होता, वेक्टर होतं, 3D होतं, त्यानंतर जे स्टॅट्स वगैरे असतं आणि बायनॉमियल थेरम होतं, हे सगळे जे मोठे मोठे चंक्स होते ते आम्ही 2 महिन्यामध्ये कव्हर केलेले. 2 महिन्यामध्ये, अँड दॅट टू विदिन RD शर्माचं पण कव्हर केलेलं आम्ही. तर आम्ही जर समजा 2 महिन्यामध्ये एवढं केलेलं, मी त्याच्यासर किंवा आमच्या बॅचनीच म्हणा, आमची ऑनलाईन 40ची बॅच होती, राईट, 40ची बॅच होती. आम्ही 2 महिन्यामध्ये एवढं चांगलं केलेलं. RD शर्मा ह्या सगळ्या बिग जे चंक्स आहेत सिलेबसचे मॅथ्सच्या, ते आम्ही एवढं चांगलं केलेलं. GATचं म्हणा, हिस्ट्री वगैरे सगळं नीट कव्हर केलेलं. तर तुम्ही तर आता 11th मध्ये, तुमच्याकडे 11th वर्ष, 12th वर्ष आहे, बघा केवढे माणसं आहेत तुमच्याकडे. आम्ही जे 2 महिन्यात केलं, तुम्हाला त्याला केवढा वाईट टाइम मिळतो करायला. सो इट इज बेटर दॅट यू स्टार्ट फ्रॉम नाव अँड स्टार्ट डुईंग द राईट थिंग, जेणेकरून तुम्हालाच हेल्प होईल आणि तुम्ही मोटिवेटेड राहाल. बाकी तर मग आय वुड लाईक टू हिअर इट फ्रॉम युअर साईड. तुम्हाला काही प्रश्न वगैरे विचारायचे असतील? Yes, if you have any kind of questions, you can ask. Sir, how was your SSB interviews? SSB इंटरव्यू, दैट वाज स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा था वहाँ पे. ऐसे बस में बैठा था. क्या हुआ, फर्स्टली तो मैंने बताया तुमको ओवरवेट का.
After that, we had you all know we fill a PIQ for going to business. So in the PIQ हमको पूरा नाम लिखना होता है हमारा, और हमारे बोर्ड में उन्होंने एक और चीज ऐड किया था कि अपना नाम का वो पार्ट अंडरलाइन करो जिससे इंटरव्यूअर तुमको बुलाएगा. मतलब मेरा नाम अभिजीत शशिकांत कदम है, अगर मैंने अभी को अंडरलाइन किया तो इंटरव्यूअर मुझे अभी बुलाएगा, ऐसा था. तो वो कुछ दिन में स्क्रीन हुआ था तो जोश में था एकदम, तो मैंने वो भूल गया था अंडरलाइन करना PIQ. तो फिर इंटरव्यू के अगले दिन साइड टेस्ट के बाद मेरा इंटरव्यू था 12 बजे. तो फिर वहाँ गया, ये ओवरवेट वाला क्वेश्चन हो गया. उसके बाद मैं बैठा तो बोल रहा है कि इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि अभिजीत, यू हैड बीन टोल्ड टू अंडरलाइन द पार्ट ऑफ योर नेम बाय व्हिच यू शुड बी कॉल्ड, बट यू हैव नॉट डन इट. आई थिंक यू मस्ट हैव फॉरगॉटन इट. तो फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, नो सर, आई हैव नॉट फॉरगॉटन, बट सिंस यू आर द इंटरव्यूअर एंड यू विल बी टेकिंग माय इंटरव्यू, आई थॉट दैट इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर यू. जो आप मर्जी करो आप बुला सकते हो. फिर वो भी हंसा, मैं भी हंसा. उसको पता चला यार ये मेरा काट रहा है, वो मेरा काट रहा है. बट इट्स ओके नाउ. वो उसने चला लिया. उसके बाद फिर से आगे थोड़ा हम गए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में. आई टोल्ड हिम दैट आई वाज द बेस्ट एंकर इन माय स्कूल. आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन डिबेट, डिक्लेमेशन. He said that why didn't you take part in dance and dramas? ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछ रहा था. डांस एंड ड्रामा में पार्ट क्यों नहीं लिया? So I said him that sir, I have taken part in lecturate and debates and I have done pretty well in that. So I have not taken part in dance and drama. So what I know, give me a satisfying reason. तो फिर I waited for some time. फिर मेरे मन में अच्छा वाला आंसर आया. बोला सर, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा थी ना, तो ग्रुप में अच्छा नहीं दिखता था. So ये ना डांस ग्रुप में पीछे कौन खड़ा रहेगा, आगे खड़े रहोगे ना, और सेम हाइट के अच्छे दिखते हैं. फिर से सेम हुआ, वो भी हंसा, मैं भी हंसा. वो बोला ओके, पॉइंट टेकन. चल रहा है आगे फिर से इंटरव्यू. It's just like that. You have to be confident over there, and that's it. Afterwards, again, confidence will come you from good dress, good knowledge, and of course remember your parents always. And उसके बाद listen the questions carefully for you guys. You will be giving your interview right now. कब है सबका मतलब इंटरव्यू का डेट वगैरह आ गया है? कब तक है? 22 से 30. ओके, टू मार्च. वहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनना. क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी अच्छे से आंसर दे पाओगे. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन. इफ यू आर अ गुड लिसनर देन ओनली यू विल बी एबल टू गो अहेड. वो सभी चीज़ों में लागू होता है. अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सुनोगे तभी अच्छे से आंसर दे पाओगे. बिकॉज वहाँ पे वो मतलब वो पूरा अगला ही स्पीड पकड़ लेता है. ही विल आस्क यू, वी कॉल इट अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चन. He will ask you a huge set of questions at a time. Like he will start that, Abhijit, I would like to know about your education from class 8 to class 12. I would like to know about the exams in which you have appeared. Besides this, Abhijit, tell me about the friends you like, friends you dislike. Tell me about the teachers which have impressed you, which have not impressed you. Besides this, Abhijit, I would like to know about your activity at school. ऐसे वो शुरू कर देगा और हमको वो इतना दूर होता है कि लास्ट गाय तो जितना सुनाई दिया ना लास्ट गाय इसको, उतना ही मुझे वहाँ पे सुनाई दे रहा था. आगे जाके इंटरव्यू बनेगा ही. स्पीड से बाकी क्वेश्चन पकड़े एग्जैक्टली ऐसे पूछा जाता है इंटरव्यू में. गुड. सेम होता है ऐसे. तो फिर वहाँ पे मैटर करता है यार तुम कितने ध्यान से सुनते हो. ही इज टेकिंग योर ग्रास्पिंग पावर. उसके बाद नहीं भी समझ आए क्वेश्चन तो जो समझे वो तो सही से बोल रहे हो कि नहीं उसका आंसर. दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज व्हाट विल बी चेक्ड इन इंटरव्यू. दैट वे यू हैव टू फेस योर एफएलपी इंटरव्यू एंड स्टडी द PIQ. उसके लिए तो लॉन्ग वे टू गो, बट दीज आर द बेसिक टिप्स. एनीथिंग एल्स? यस. अरे देखो क्वेश्चन पूछा है, फील शाय व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस. क्या पता आंसर कर पाओ या नहीं कर पाओ, बट यू मस्ट आस्क क्वेश्चन. Sir, as you said that you have prepared from last 2 months. So what were your strategies within the last 2 months? रिटन एग्जामिनेशन. Yes, sir. रिटन एग्जाम जो था फॉर दैट अगेन तेजस सर के जो नोट्स है वो व्हाटएवर ही यूज्ड टू टेल मी इन द क्लास और द ऑनलाइन क्लास, जितना भी वो बताते थे उतना सब लिख के लेता था और वो प्रैक्टिस करता था. और वो हमेशा चेक करते थे कि किसी ने रिवाइज किया है कि नहीं, क्योंकि कैसा होता थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है लेक्चर का टाइम. तो फिर वो 15 मिनट में किसी ने सबने रिवीजन किया कि नहीं वो चेक कर रहे. तो एक किसी बंदे को पकड़ते थे वो और पूछने लग जाते थे पिछले वाले क्वेश्चन. तो फिर मैं क्या करता था हमेशा जो था जब सिखाया तब तो पूरा ध्यान दो, और उसके बाद क्लास को बैठने से पहले 10 मिनट्स 15 मिनट्स भी काफ़ी होते हैं. बस जो कल सिखाया उतना बस रिवाइज कर दो और अगले लेक्चर के लिए बैठ जाओ. उसके बाद जो कुछ सिखाया उसके ऊपर के RD में से क्वेश्चंस या फिर अपने पास जो गाइड होता है रेफरेंस बुक. ऑल रेफरेंस बुक्स आर गुड. ऐसा कुछ नहीं होता है पाथफाइंडर बुरा है या फिर धनकर का पब्लिकेशन का बुरा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता. जो कुछ भी रेफरेंस बुक है
उसमें से वो टॉपिक के सॉल्व करने का। जीएटी के लिए सेम विकास सर देंगे, अजय सर देंगे खतरनाक नोट्स, बस वही रटो। चाहिए तो क्या करो, अपने एक दूसरे दोस्त को या फिर जूनियर को पकड़ो और उसको सुनाओ, 2-3 घंटे सुनाओ। मैं यही करता था। ज्योग्राफी का पढ़ा लिया ना सर ने, तो मुझे अभी भी याद है वहाँ उन्होंने इससे शुरू किया था, वो जो विंड्स वगैरह रहते हैं ना, और ग्लोब पे जो टाइप्स ऑफ विंड्स रहते हैं, लोकल विंड, उसके बाद वो सब हुआ ईस्टर्ली वेस्टर्ली, वो सबसे स्टार्ट किया था सर ने हमको पढ़ाना। तो मैं तब से ज्वाइन हुआ था। तो फिर मैं वो सब पढ़ता था या फिर पढ़ता था, उसके बाद मम्मी पापा को बैठता था बैठो, और उनको देख के बोलता था जो कुछ भी पढ़ा है, उससे मुझे मेमोराइज जल्दी हो जाता था उनको ऐसे उनको बताने से। सो यू कैन ऑल्सो डू दी सेम। जो कुछ भी पढ़ा है हिस्ट्री वगैरह का, एक साल स्टार्ट कर दो, 57 वाला स्टार्ट कर दो रिवॉल्ट से, कहाँ पे शुरू हुआ, किससे हुआ, पढ़ लो और किसी दोस्त को जाके बता दो, मेमोराइज होगा ना। दूसरे वाले को ही फायदा होगा, तो उसको पकड़ के बैठ के बोल रहा है सुनो सुनो। और मैथ्स का ट्राई दैट यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अगेंस्ट टाइम, तभी अच्छा प्रैक्टिस होगा। और फिर तो उनके टेस्ट होते होंगे इधर, हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट में तो अगेंस्ट I would like to add one more thing, ठीक है। अभिजीत का स्ट्रगल दिखता है 4-5 महीने का ही, लेकिन 4-5 महीने का नहीं है, ठीक है। यू शुड नॉट मिसइंटरप्रेट कि बस 2 महीने में ही पढ़ना है। जितना ग्रास्पिंग इस बंदे का है ना, उतना हार्डली किसी बंदे का होगा। सो इवन यू हैव टू टेक दैट इन अकाउंट। और उनका सिंसियरिटी, अभिजीत का सिंसियरिटी इज एक्सेप्शनल। अभिजीत ऐसा लड़का था कि अभिजीत तुझे आज ये नहीं करना है, उसके बाद अभिजीत कभी क्यों ये नहीं पूछेगा। वो शायद भूल गया तू, लेकिन वन-ऑन-वन में तो मैंने भी हराया वैसे, है ना। बस बात ये है कि अभिजीत तो रीजन देता था, सर थोड़ा पिंग हाई था और क्या क्या बताता था पता नहीं, ठीक है। बट जोक्स अपार्ट, एक बात थी, ठीक है, बहुत ज्यादा हम पबजी खेला करते थे क्योंकि कोरोना में किसी को कुछ काम था नहीं। मैक्स काम था क्या, हमें वो बाहर आ जाओ, थालियां बजाओ दिया जा रहा अब दिया जाओ, है ना। तो बेसिकली अगर हमें कुछ एक्सक्यूज चाहिए होता था तो एक्सक्यूज हमारा यही हुआ करता था कि अरे अभी आज थाली बजाना है, सो आज पबजी बाद में खेलेंगे, ठीक है। बाद में खेलेंगे, बाद में खेलेंगे ये सारे रिवोल्यूशन छोड़ना नहीं, हाँ, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली तब कुछ था ही नहीं, है ना। पूरा लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं था तभी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, है ना, अगर आप में से किसी को गेमिंग का शौक होगा तो यू रियलाइज इट इज नॉट इजी टू गिव अप ऑन थिंग्स, कि अभी आज के बाद तू पबजी नहीं खेलेगा, उसके बाद यस सर, ये जो था सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए एटलीस्ट, बीइंग अ मेंटर, क्योंकि हमारा रिलेशन यू मस्ट हैव रियलाइज वी हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन, है कि नहीं। मतलब जब ट्रैक पे जाता था तो उसने बताया नहीं, बहुत ही गेंडा था, मतलब मैं चिढ़ाता नहीं था, मैं सिर्फ उसको रियलिटी बताया था। चिढ़ाना इज अ डिफरेंट थिंग, रियलिटी बताना इज अ डिफरेंट थिंग। वो रियलिटी से आके वो गेंडा था, है ना, सिंपल सी बात है। हम सारे कोई तो फोटो बड़े वाल वाला मोटा वाला नहीं है, मैं आई शो दैम। हम उतरते थे ट्रैकिंग के बाद, हम सारे उतरते थे, वो स्लाइडिंग कर गया। डिफरेंस है। बट एक बात समझना काफी इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अभिजीत। एक बार उसको चीज बता दो, ही विल नेवर इवन आस्क व्हाई। अभिजीत इंस्टाग्राम छोड़ दो, आंसर इज यस सर, ठीक है, कि सर थोड़ा करूं क्या, 5 मिनट यूज करूं क्या, नो, राइट, बिकॉज ही नोज कि हमारा ड्रीम कॉमन था, व्हिच वाज अ ड्रीम, एंड एट दैट टाइम मैंने उसको बताया था इतना एफर्ट्स दे, इतना होगा। सो ये जो प्रोसेस ये बता रहा है ना, ये बता रहा है, ये 2-3 महीने का प्रोसेस था, इट वाज नॉट 2-3 मंथ्स प्रोसेस। ये मोटिवेशन था 9th क्लास से लेके अब तक का, बस उस मोटिवेशन को नॉलेज बेस अटैच करने का काम हम दोनों ने किया, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू वन थिंग, यू कैन सिट, क्वेश्चंस आते रहेंगे, नहीं अभी आते रहेंगे, चलेगा, इट विल बी कंफर्टेबल, आ जाओ, चलेगा। अरे बहुत टाइम चलेगा, आ जाओ, है ना। लेट्स टेक क्वेश्चन, फिर सबका यहाँ पे इवेंचुअली मोटिवेट ही है। यस हाँ, Sir, how to maintain consistency? कंसिस्टेंसी सेम प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जो क्वेश्चन पिछले टेस्ट में नहीं आए वो सॉल्व करते रहो। उसके बाद इसका जीएटी के लिए वैसा करो, अभी जो टेस्ट में आंसर गलत होते होंगे ना, वो बुक के पिछले पेज से लिखना स्टार्ट कर दो करेक्ट आंसर के साथ, और वो पढ़ा करो हर रोज। और मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस होगा यार। कंसिस्टेंसी कैसे होता है, जब आप सम सॉल्व कर सकते हो, अगेंस्ट टाइम सॉल्व करते रहो, ताकि आप हर बार वो जो 1.5 घंटा होता है उसमें आप जो टारगेट होते हैं वही सॉल्व करते रहो। और हमेशा ऐसे करते रहोगे तो फिर क्या होगा, आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा। स्पीड और एक्यूरेसी, अगर ये 2 चीज बढ़ जाए ना, कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटीड है। क्योंकि 2 चीजें हो जाती है, अगर स्पीड बढ़ा लिया तो एक्यूरेसी घट जाती है, सिली मिस्टेक्स होने लगता है स्पीड बढ़ाया तो, दिस वाज माय केस।
और अगर एक्यूरेसी बढ़ती है तो स्पीड कम हो जाती है। इसलिए ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल एंड दैट टू अगेंस्ट टाइम लगा के सॉल्व करो, दोनों इंप्रूव हो जाएगा। और जीएटी के लिए मैंने बताया जो कुछ भी गलत होते हुए क्वेश्चंस वो पिछले साइड से लिखना स्टार्ट कर दो ताकि वो ज़्यादा इजीली आपको ये हो जाए, याद हो जाए। Sir, how to improve our grasping power? ग्रास्पिंग पावर, Yes, sir. इसके लिए देखो अभी हर एक का तो सेम नहीं हो सकता और उसको इम्प्रूव करने के लिए यार मतलब मेरा तो थोड़ा अच्छा था तो मुझे मतलब से कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगेन यार प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो या फिर सीधा जाते जस्ट सर के पास अप्रोच करो, सर बोलो सर ऐसे ऐसे हो रहा है मैं क्या करूँ। और यार क्यों कम है, क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं होंगे, दैट माइट बी। या फिर सोचते हो कि यार क्लास में तो मतलब चलता रहता है मौज, आप क्लास में सर तो बहुत जोक कराते हैं, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, सबको मजा आता है क्लास में, उनके जोक से आप बाहर नहीं आ पाओगे ऐसा लग रहा है, इसी वजह से ग्रास्पिंग कम होता है। उस पर जो जोक उन्होंने किया सर के वो छोड़ के जल्दी से अपने ऊपर आ जाओ, टॉपिक के ऊपर, ज्यादा उसमें घुसने का नहीं, फोकस रहने का। या फिर सर से बोल सकते हो ग्रास्पिंग कैसे इंप्रूव करें मुझे yes. Sir, as you are being recruited for the Indian Air Force, sir, as it is said that the SSB of Indian Air Force is hard, quite hard, as compared to the Indian Navy and Indian Army. So, sir, what are the such activities carried out in the SSB of Indian Air Force as compared to the Army and Navy, which makes the interview hard? ओके ओके ओके, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये इलाहाबाद बोर्ड रिजेक्शन बोर्ड है या फिर ऐसे एयरफोर्स का इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक फर्क होता है माइनर सा, एयरफोर्स में जो ऑब्स्टेकल होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स वो अलग होते हैं, समझा ना। ग्रुप टास्क होते हैं हमारे, ग्रुप टास्क में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। एयरफोर्स में 3 अलग होते हैं वो आर्मी से कंपेयर। एयरफोर्स में होता है मंकी क्रॉल, वो ऐसे रोप लगा होता है और उसके ऊपर हमको ऐसे पैर और हाथ लगा के ऐसे उल्टा उल्टा जाना पड़ेगा। उसके बाद वो दूसरा होता है रोप क्लाइंबिंग, और उसके बाद तीसरा जो होता है उनका होता है 8 फीट का वॉल जंप होता है, वो 3 उनके अलग होते हैं। उसके बाद वो छोड़ के तो सारा इंटरव्यू सेम होता है एसएसबी की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। वो बस ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि जो है एयरफोर्स को जो मेरिट लगता है वो हाई होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि यार एयरफोर्स का इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद का जो होता है सीपीएसएस, वो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इंटरव्यू का, और तो कुछ नहीं, इजी होता है। मतलब इजी नहीं, इफ यू प्रैक्टिस तब इजी होता है, राइट। सो ये तो हाँ में चढ़ जाएंगे सारे इजी होता है, अब तो डायरेक्ट 2 महीने पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यस Sir, how you made your timetable for NDA study? अच्छा, टाइम टेबल never works usually, but yes, I used to go with the classes schedule as sir schedule used to go. सर का सुबह 9 या 10 बजे तक क्लास शुरू हो जाता था, तो फिर वहाँ से तो 1 बजे तक या 2 बजे तक चलता था। उसके बाद जीएटी का क्लास था 4:30 5, 5:30 तक सब खत्म हो जाते क्लासेस। उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करता था मैथ्स से, जो कुछ हमको सिखाया होगा वो रिवाइज कर दो और जिसमें वीक हो उसमें से आगे वगैरह सॉल्व करना शुरू कर दो। उसके बाद डिनर वगैरह करता था, फिर से उसके बाद थोड़ा देर चाहिए तो मैथ्स करता था, नहीं तो फिर जीएडी का पढ़ता था। उसके बाद मम्मी की सीरियल देख के हो जाती थी, मम्मी को बोलता था आप बैठो, और जितना भी जीएडी का पढ़ा है उनको सब कुछ बता देता था, सब कुछ, हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो ऐसे। उसके बाद सुबह मैं मतलब मेरा दोनों टाइप का है, मैं दोनों टाइप का इंसान हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं रात को भी जाग के पढ़ाई कर सकता हूँ या सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकता हूँ। आप किस टाइप के हो देख लो। सुबह उठ के कर सकते हो तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो टाइम आपको हेल्प करेगा। खुद से जब आप खुद से उठ के पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा आपको खुद को भी। या फिर रात को जाग के पढ़ाई करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दो। अभी एकेडमी में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती होगी, राइट। अभी ये भी आपका कोई तो दूसरे टाइम के लिए होगा ना, फंक्शन का टाइम आपका कोई तो अलग हर रोज दिन में करते हो गया। अभी ये टाइम तो आज का हो गया, लेकिन हर रोज अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दो, तभी आपको ये हेल्प होगा। टाइम टेबल तो वैसे यही नॉर्मल। उसके बाद ये था विकास सर ने बताया था कि ऐसे टेबल फॉर्मेट बनाओ और उसमें ना 4 या 5 कॉलम रखो, उसमें टाइम स्लॉट लिखो। मतलब मैं सुबह उठता था ना, मैं सुबह 5 बजे उठता था, तो मैं 5:30 से लेके 8 तक खुद का पढ़ाई करता था। तो उसमें टाइम लिखने का, क्या पढ़ा लिखने का और कौन सा टॉपिक पढ़ा और उसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए टॉपिक में से, वैसे लिखने का। और टोटल आप जितना ऐड करोगे ना वो 7 या 8 घंटा होना चाहिए टोटल टाइम, उतना भी काफी। सेल्फ स्टडी ना, ये क्लासेस वगैरह का मत ऐड करो, खुद के लिए कितना टाइम निकालते हैं उससे वो चेक होगा। और ऑनलाइन था तो मैं हर संडे को विकास सर को फोटो भेज देता था
हर हफ्ते का क्या कैसे कैसे टाइम किया है इसमें, कैसा था टाइम टेबल, एनीथिंग एल्स? ठीक है, we'll take last one question. Sir, what is CPSS? CPSS is the computerized pilot selection system. उसके पहले PABT था, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, उसी का नया वर्जन है CPSS। बेसिकली उसमें दो पार्ट होते हैं कि फर्स्ट इज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, सेकंड वन इज साइकोमोटर बैटरी टेस्ट। नथिंग, बस अगर तुम एयरफोर्स में फ्लाइंग जाना चाहते हो, मतलब ऑफ कोर्स सभी जाना चाहेंगे फ्लाइंग, तो तुमको वो टेस्ट देना पड़ता है। उसमें फिर हमारा जो होता है सबसे पहले वो ये होता है कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। तो उसमें वो सब चेक करते हैं कि इसका स्पेस में कैसे इमेजिन करता है थिंग्स, उसके ऊपर हमको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है जो सबने सुना होगा, वो कॉकपिट में बिठाते हैं गेम खेलने के लिए, वो वहाँ आता है। वो मतलब वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो मैं कभी नहीं भूल सकता। एसी रूम था, हमको अंदर भेजा, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था CPSS में, वो जो ऑफिसर होता है ना, वो कुछ नहीं बताता है हमको, खुद के खुद रूल सारे पढ़ने होते हैं। सबको एक एक कंप्यूटर दिया होता है फर्स्ट पार्ट में, कंप्यूटर पे खुद ही रूल्स पढ़ो, खुद ही सब कुछ पढ़ो और खुद ही टेस्ट करो। सेम इज विद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सबको अंदर बुलाते हैं, जो फर्स्ट पार्ट पास होते हैं, दूसरा होता है साइकोमोटर बैटरी टेस्ट। तो वो जो पास होते हैं तो फिर वहाँ पे उनका वीडियो लगा रहता है। एसी रूम रहती है अच्छी वाली, ऐसे 10-10 कॉकपिट लगे होते हैं, ऐसे उसके ऊपर इंडिया का ऐसे वो फ्लैग बना रहता है, ऐसे वो गोल प्रॉपर कॉकपिट जैसा फीलिंग आता है उसमें। हमारे यहाँ बंदे ऐसे एक दूसरे को कैसे ऐसे कर रहे हैं, अरे भाई रुको जरा पहले टेस्ट दो, ऐसे बंदे उधर बैठ के कॉकपिट में सैल्यूट वगैरह कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बढ़िया है। तो फिर सेकंड टेस्ट था वो खुद का खुद वीडियो देखने का, वहाँ पे जॉयस्टिक रहता है उसका और पेडल रहता है, तो उसका वो सब कंट्रोल्स खुद देखने का और टेस्ट स्टार्ट कर देने का। उसमें 10 टेस्ट रहते हैं, वो 10 टाइप्स के गेम रहते हैं। हर एक गेम को हम 4 टाइम्स खेल सकते हैं और 1 मिनट के लिए होता है वो चांस। तो दैट इज जस्ट तुम कितना अलर्ट हो, तुम्हारे ऑडियो विजुअल स्किल्स सही है कि नहीं, वो सब चेक करती है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं एक्चुअली लेफ्टी हूँ, तो फिर वहाँ पे मैं बैठा कॉकपिट में, सब तो पहले तो बहुत जोश था। फिर जब आया कि ओके जेंटलमैन होल्ड ऑन योर जॉयस्टिक एंड ट्राई टू थोड़ा ट्रायल गेम खेल के देखो, मैं इस हाथ से पकड़ा तो पता चला जॉयस्टिक बना है राइट हैंड के लिए। तो फिर मैंने सर को बुलाया कि सर लेफ्ट हैंड वाला कॉकपिट है क्या, तो सर मेरे को बोल रहे हैं तेरे लिए रफाली मंगाएंगे ना लेफ्ट हैंड वाला टेस्ट देना है तो दे, और वेल यू कैन कंटिन्यू विद लेफ्ट हैंड। तो फिर मैंने ठीक है बोला, राइट हैंड से एक दो ट्रायल खेले और उसके बाद सारे टेस्ट जो है राइट हैंड से दे दी। उसके बाद रिजल्ट का थोड़ा टेंशन था लेकिन क्लियर हो गया, तो सर बस देख रहा है राइट हैंड से, तो राइट हैंड से पास कर ली मैंने टेस्ट। बस फन, बहुत फन होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस इसलिए वो तो अभी भी 2 थी, मजेदार है। अभी 2 थी ना टेस्ट? नहीं ये इसका CPSS के टेस्ट जैसे हाँ। मैंने जब दिए थे तब PABT और INS भी 2 अलग हुआ करता। राइट So इंस्ट्रूमेंटल अलग था और पैरामेट्रिक इंस्ट्रूमेंटल अलग वाला था। कॉग्निटिव में आता तो है। अभी Part one इसके में नाम क्या क्या है? Because I am aware. अच्छा। I am not aware. हाँ ओके, CPSS is in 2 parts. First part I told you that cognitive battery test. उसमें 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, उसको कहते हैं INSB, इंस्ट्रूमेंटल बैटरी टेस्ट 1, इंस्ट्रूमेंटल बैटरी टेस्ट 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. And second part is the psychomotor battery test, and you have to pass the part 1 to be eligible for part 2. ऐसे फिर उनका रिजल्ट वगैरह अनाउंस होता है, और वहाँ तो पे साइकोमेट्र मतलब PABT है सर। साइकोमोटर में वो कॉकपिट में सबका नाम था। Like PABT. यस, वहाँ पे वो अलग ही रहता है। वहाँ पे हुआ क्या, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, उनके नाम अनाउंस किए जो फेल हुए थे, मतलब पार्ट 1 का जो रिजल्ट था उन्होंने उनके नाम अनाउंस किए जो फेल हुए थे, और सेकंड पार्ट जब कंप्लीट हुआ उन्होंने उनके नाम अनाउंस किए जो पास हुए थे। तो अब मेरी तो और पड़ गई थी, क्योंकि सेकंड पार्ट पहले खराब गया था, मैं राइट हैंड से खेल रहा था गेम सारे, और उसमें वो पहले नाम लिया ऐसे था, चेस्ट नंबर हमारा था 2 वाला हुआ था, 4 हुआ था, और उसके बाद सीरियसली 17-18 बोलते, अब मैं था चेस्ट नंबर 18। तो पता चला अरे यार हो गया, मुझे लगा अब तो चले जाएंगे, अब तो बाहर निकल गए, लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं यू ऑल हैव क्लियर्ड द CPSS एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइट। How many of them 9 notice मतलब कितने लोगों ने रिपोर्ट किया था, कितने लोग CPSS क्लियर हो गए? Okay, I will start from day 1 only. 220 was the reporting at AFSC Mysore. मतलब 220 ऐसे लोग जिन्होंने NDA का UPSC का रिटर्न क्लियर किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद 69 लोग स्क्रीन हो गए, 69 में से 19 लोग रिकमेंड हो गए, और उस 19 में से 9 CPSS क्लियर किए। 220 में से 9 लोग CPSS क्लियर, 220 ऐसे लोग जिन्होंने एयरफोर्स के लिए क्लियर किया था। यस, देयर आर स्टिल क्वेश्चंस। अब आप प्लीज लोग आस्क, चलेगा। What about those candidates who have not cleared CPSS?
There are 2 branches in Air Force. There are actually 3 branches. Anyone can tell all the 3 branches of Air Force? 3 ब्रांच होते हैं ना Air Force में, यार सुना होगा किसका? Structure of Air Force में पढ़ा होगा. Okay, ठीक है. There are 3 branches in Air Force. First is the flying branch, second is the technical branch, and third is the ground duty branch. So if you clear the CPSS, you are eligible for flying branch and the other 2 as well. But if you fail CPSS, you are not eligible only for the flying branch. You can join the technical branch or ground duties branch. So you can go for that. Technical branch में सब engineering वगैरह आता है और ground duties में अपना सब भरा पड़ा है. Medical and dental services है, aeronautics है, उसके बाद meteorology है, सब भरा पड़ा है. मतलब कैसे भी करके जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. फाइटर कंट्रोल आता है. Anybody know what is फाइटर कंट्रोल? फाइटर कंट्रोल क्या होता है, किसी को पता है? विंग कमांडर अभिनंदन के साथ उसको भी मेडल मिला था फाइटर कंट्रोल वाले को. अच्छा ठीक है. फाइटर कंट्रोल इज द गाय हु विल सिट डाउन ऑन द रडार एंड कीप ऑन ट्रैकिंग. ऊपर में जो उसका कंपेनियन जो उड़ा रहा है एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जांपल विंग कमांडर अभिनंदन थे, उनको नीचे बैठे बैठे फाइटर कंट्रोल वाला बंदा था, रडार कंट्रोल कर रहा था. वो उनको बता रहा था कि तुम्हारे लेफ्ट से या फिर तुम्हारे मतलब वहाँ से लेफ्ट राइट में था, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट से एक और जहाज एक और एयरक्राफ्ट आ रहा है. वो सब बताने का काम फाइटर कंट्रोल वाला करता है. वो भी ग्राउंड पुलिस की एक ब्रांच होती है उसमें. दैट इज फाइटर कंट्रोल. दैट्स ऑल. ठीक है, और कोई क्वेश्चन होंगे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. अभी तो चल रहा है इसका इंस्टाग्राम, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना. यस, फॉलो बढ़ाने की निंजा टेक्निक है. जगह जाओ बस बीच दो, है ना, फॉलोअर बढ़ाओ, चलेगा. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. बस टेक मोटिवेशन फ्रॉम अभिजीत, ठीक है, बिकॉज जिस जगह पे तुम अभी बैठे हो वहाँ पे पहले अभिजीत बैठा करता था. जर्नी फ्रॉम देयर टू हियर इट्स वेरी स्वीट, है ना. इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, बट डेडिकेशन बहुत देना होता है. डेडिकेशन अगर पता नहीं चलेगा ना, अगर आप बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हो तो आपको आपका जर्नी पता नहीं चलेगा. अगर जर्नी पता नहीं चल रहा है लेकिन आउटकम अगर आ रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल रियल हार्डवर्क, है ना. आप हार्डवर्क कर रहे हो और आपको उसका प्रॉब्लम हो रहा है, दैट कैन नॉट बी अ रियल हार्डवर्क, है. ऐसे हार्डवर्क कुछ काम का है नहीं. सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि यहाँ पे सारे जूनियर्स ही है ना. सारे जूनियर्स हैं ना. सीनियर्स तो पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी सीनियर्स क्योंकि उनकी खुद की इंडिया आ चुकी है, उनको अभी मोटिवेशन से भी ज़्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बट नेक्स्ट सितंबर आप दोगे, उसके नेक्स्ट सितंबर आप दे दोगे, ठीक है. सो यू स्टिल हैव सो मेनी थिंग्स इन हैंड एंड फाइनल मोटिव हैज टू बी एनडीए. ठीक है, एनडीए पर एक हो गया, उसके बाद कोई टेंशन नहीं. कंपटीशन स्मॉल नहीं है, ठीक है. 8 लाख लोगों ने एनडीए दिया था, उसमें से 8,000 ने रिटर्न क्लियर किया. उसमें से रिकमेंड कितने होंगे पता नहीं, 400-500 रिकमेंड हो जाएंगे, ठीक है. उन 400-500 में से एयरफोर्स के कितने होंगे पता नहीं, है ना. 150 एयरफोर्स के लिए वगैरह होंगे. उस 150 में से सीपीएसएस कितने होंगे वो भी पता नहीं, ठीक है. बस एक ही बात मुझे पता है ना. हमारा ये हुआ था, फैक्ट हुआ था, जब वो फ्लाइंग मतलब प्लेन उड़ाएगा तो वो फाइटिंग के ऊपर से जाएगा, ठीक है. और अगर पॉसिबल हो तो डाल देना फुल व्हील, क्या रहता है वो, है ना. फुल व्हील डालते हैं ना लोग. फाइटर क्राफ्ट से कितना डाल पाएगा पता नहीं, लेकिन एक बार ऊपर से तो लेके जाएगा. फिर मैं बताऊंगा हमारा अभिजीत कदम है. क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी क्या तो बता दूंगा मैं. उसको समझने वाला है नहीं है, वो जाके ऊपर देखने वाला है. वो सिर्फ मूवी में होता है, नीचे से सैल्यूट मारता है, है ना. बॉर्डर मूवी में होता है, तो नीचे से सैल्यूट मारता है, ऊपर से वो फाइटर पायलट को देख लेता है. फाइटर पायलट देख लेता है नीचे से सैल्यूट आ रहा है, ठीक है. सो रियल लाइफ में नहीं होता है. मुझे आवाज आ जाए तो फाइनल का मैं बता दूंगा आप जीत गए. अरे बस लेकिन इतना ही है. मतलब मैंने अभी इतना सब बकवास किया है, अब तुम्हारे हिसाब से जो है थोड़ा तो उसमें से अगर आपको अच्छा लगा है तो यार फॉलो करना स्टार्ट कर दो. आप भी से अच्छा लगेगा मुझे भी थोड़ा यार. अपना तो यार अपने लेक्चर काम का है, बस उतना ही स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स देयर कॉन्फिडेंस. लाइवलीनेस नाम का अगर कुछ होगा ना क्वालिटी, ऑफिसर वाली क्वालिटीज में कितने क्वालिटीज होते हैं? 15 है कि नहीं. वो लाइवलीनेस अभिजीत से आई, ठीक है. अगर पता नहीं होगा तो हर चीज को कैसे भी द स्माइल फेस करना है, ये अभिजीत से. फिर वो कुछ भी हो, फिर वो कॉम्प्रोमाइजेस हो. कॉम्प्रोमाइजेस अभिजीत को कॉम्प्रोमाइजेस लगती नहीं, ये मुझे रियलाइज हुआ था, ठीक है. क्योंकि वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था सबके लिए यार. कितना डिफिकल्ट था, इवन वाईटी के लिए वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था. क्योंकि अब अभी आप इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट देख रहे हो, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट थी नहीं, है ना. जब अभिजीत के डैड आए थे तब तो थी नहीं. तब तेरे डैड आए थे ना, वो तो बहुत डेंजर था. मतलब उधर एक फ्लैट, उसके बाद उसके बाजू में रूम, उसके बाद वो उसका केदार, तो उसके बाद उधर बाजू में एक और पूरी बिल्डिंग है रेंट के. उसका पूरा ये 6
6 फ्लोर्स वाला है। मतलब मुझे कब पता चला ये, जब मैं सर को मॉक इंटरव्यू देने आया था, तब मुझे पता चला कि यार अरे बाप रे, बस 2 साल में इतना ऐसे जंप पे जंप ले जा रहे हैं। दैट इज वेरी ग्रेट थिंग। मतलब मैं भी खूब शॉक था यार, ऐसे कैसे खतरनाक डेवलप हो रहा है एकेडमी, वहाँ से यहाँ इट्स डायरेक्ट। ऑल बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। सिंपल सी बात है यार, जितना वो रिजल्ट के लिए हंग्री था उतना मैं रिजल्ट के लिए हंग्री था। सिंपल सी बात है। और यही होता है, जब म्यूचुअल जब जमता है ना, तब बॉस बन जाता है। फायदा दोनों का है, हाँ, ये देखिए। ठीक है, राइट। सो बनाते यार, IIT बड़ा इंस्टीट्यूट